السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور عوام کے اعتماد کو فروغ دینے کے لیے جدید خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم کے استعمال پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں اپنے تعلقات مضبوط بنانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے دوران کسانوں میں 20,000 گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے منصوبے کا 5واں مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں کاروبار کے نئے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری راستے اختیار کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بچوں کو بھارتی تشدد سے بچانے کے لیے مداخلت کرے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ لاہور میں 3 میچوں کی سیریز کے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیتنے کے لیے 158 رنز کا ہدف دیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے ممکنہ خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس نظام میں شفافیت، عوام کے اعتماد کو فروغ دینے اور محصولات میں اضافے کے لیے جدید خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جاری اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے نظام میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات کو کم سے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودکار جدید اور مؤثر ٹیکس مینجمنٹ نظام کا یہ منصوبہ حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ FPR اصلاحات کا عمل ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے جاری رہے گا۔ غیر قانونی سگریٹس کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے انکم ٹیکس وصولی کے مجوزہ آٹومیٹڈ نظام کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹیکس کا نیا مجوزہ نظام جائیدادوں، گاڑیوں اور بینکوں کے ڈیٹا کے ذریعے کم ظاہر کی گئی آمدن اور اثاثوں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اجلاس میں ان لینڈ ریونیو کی وصولیوں کو مزید مؤثر، شفاف اور فیس لیس بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی معیشت کی مجموعی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال اور شفاف کارکردگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کو سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ٹیرف کمیشن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت دنیا میں رائج بہترین طریقوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت مختلف شعبوں کے لیے ٹیرف میں مرحلہ وار کمی کی جائے گی، جس کا مقصد برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے اہداف حاصل کرنا ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ لاجسٹک کے شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے ریفر کنٹینرز اور سیمی ٹریلرز پر عائد ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے خصوصی گاڑیوں اور مشینری پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی جا رہی ہے۔ کینسر کے ادویات میں استعمال ہونے والے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی، جس کا مقصد دوا سازی کے شعبے کو سہولت فراہم کرنا ہے۔
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कबायली उमूर मुबारक ज़ेब ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उनसे गुफ्तगू करते हुए मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमती तरजीहात का अयादा किया। मुआविन ख़ुसूसी ने ज़िला बाजोड़ में तालीमी इदारों के लिए 5 बसें फ्राहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने हल्के से मुतालिक दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। अरकान कौमी असम्बली गुल असगर खान और राजा उसामा सरवर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और इनके मुतालिका हल्कों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने ये बात श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेज के वफ्द से मुलाकात में कही, जिसने आज इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया और उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान का मुतालियाती दौरा करने वाले वफ्द को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इलाकाई चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में उनका दौरा मुफीद और क़याम खुशगवार रहेगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मसीही बिरादरी के वक्त से मुलाकात के दौरान किया, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अक़लियती और दीगर बिरादरियों के नुमाइंदों से मशावरत, कानून साजी और अवामी पॉलिसियों में तमाम शहरियों की आरा और ज़रूरियात की मुअस्सिर अक्कासी को यकीनी बनाती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, मसावी शहरियत और एक ऐसे जामे माशरे के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है जहाँ हर पाकिस्तानी बिला इम्तियाज़ कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वफ़द ने अक़लियती बिरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के मुसलसल अज़्म को सराहा। मुलाकात में अक़लियती बिरादरी को दरपेश मसाइल के हल, मुत्तलिका कवानीन और पॉलिसियों के ज़रिए मसीही बिरादरी की ज़रूरियात का मौसर अंदाज में अहाता करने से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हजाज कराम को मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान सहूलतें फ़राहम करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हज मिशन ऑफिस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्ला खान ने मदीना मुनव्वरा से बताया है कि वफाकी वज़ीर ने मिशन ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और अमले के अरकान से बातचीत की। डायरेक्टर मदीना जाहिद सोहेल ने पाकिस्तानी हजाज को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबा सिंध में अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने ये बात आज कराची में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में बैन सूबाई ताउन, इंसदाद मनशियात और अवामी खिदमात की बेहतरी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि जदीद ज़रई मशीनरी किसानों के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में छोटे काश्तकारों के लिए जदीद तरीन ज़री मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 9500 हाई पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी है, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स पर काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पंजाब में पहली मरतबा 12 इकसाम की हाई टेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे की स्कीम जारी है और पंजाब में काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर करीबन 200 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर मिल गए हैं और गंदम की फसल की कटाई के लिए पहली मरतबा 50 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चावल के काश्तकारों को 5000 सुपर सीडर मिल गए हैं और पहली मरतबा सुपर सीडर्स के जरिए 14 लाख एकड़ पर चावल की बवाई मुकम्मल की गई है। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने आज कराची में बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन का दौरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और डिप्टी हाई कमिश्नर टॉम ब्रिज समेत दीगर सिफारती अमले ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। फरीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ये बात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की डिप्टी स्पीकर सरैया बीबी ने आज बालाई चित्राल में रोशन मुस्तकबिल कार्ड और रोशन सहारा कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रोशन मुस्तकबिल कार्ड और रोशन सहारा कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण है, जिनके ज़रिए यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन को माली इमदाद फराहम की जाएगी। सऊदी अरब के शाह सलमान इंसानी इमदाद और रिलीफ सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में अपने बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फराहमी के मनसूबे का 5वां मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस मनसूबे का मकसद कमज़ोर तबकात को ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम करना है। सूबे के 7 इलाकों के मुस्तहिक ख़ानदानों में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की 3,500 किट्स तकसीम की गई। तफसीलात के मुताबिक बालाई और ज़ेरी कुरम मोहम्मद और अगज़ई शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़ेरी और बालाई जनूबी वज़ीरिस्तान में 500 किट्स तकसीम की गई। इस मनसूबे पर कौमी हंगामी इमदादी इदारे के ताउन से अमल दरामद किया गया, जिसमें रवाबत, शफाफियत और मुस्तहिकीन तक इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में कारोबार के नए औकात कार का ऐलान कर दिया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, जबकि शादी हॉल और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्तोरां, कैफे और खाने पीने की दीगर दुकानों को रात 11 बजे तक काम करने की इजाज़त होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज के साथ साथ फार्मेसी, हस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज, बेकरियां, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फ्यूल स्टेशन, जिम, खेलों की सहूलियात, IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स को नई पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 24 हलकों में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंतखाबात में 272 आज़ाद उम्मीदवार जबकि 131 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर हिस्सा ले रहे हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो सिंध तास मुआहिदे के तहत हुकूक और अपने अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी रास्ते इख्तियार करने का हक़ रखता है। ये बात दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भारतीय हुकूमत की जानिब से दरियाए चनाब से ब्यास तक पानी की मुंतकिली के मनसूबे के लिए बोली तलब करने से मुतालिक सवालात के जवाब देते हुए कही। तर्जुमान ने कहा कि दरियाए ब्यास के निज़ाम में चनाब के पानी के रुख को इस तरीके से मोड़ना न सिर्फ सिंध तास मुआहिदे की संगीन खिलाफवर्जी है, बल्कि मुआहिदे के कवानीन बिलखुसूस वियना कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ ट्रीटी के साथ साथ बैनुल-अक़वामी आबी कानून के तरीक़ाकार के भी मुनाफी है, जिसमें वो असूल शामिल हैं जिनकी अक्कासी 1997 के अक़वाम मुत्तहिदा के आबी रास्तों पर कन्वेंशन में की गई है। उन्होंने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में सलाल डैम आबी ज़ख़ीरे को मुजव्वज़ा गहरा करने के मनसूबे को भी इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने इन मनसूबों के बारे में ना तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया, ना कोई इसका नोटिस शेयर किया और ना ही उसने इस सिलसिले में मुशावरत की। उन्होंने कहा कि इन मनसूबों से इस बात की तस्दीक होती है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि इलाके इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए भी खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम मुज़ाकरात और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पानी, खुराक और माशी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इसके 25 करोड़ अवाम की बका और फलाह बहबूद को खतरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम जनूबी एशिया को मज़ीद इस्तेहकाम से दोचार करने के मुतरादिफ हैं, जिसके मुमकिन संगीन नताइज पूरे खित्ते के लोगों पर संगीन असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो किसी भी किस्म की आबी जारहियत से बाज आ जाए, ऐसे मनसूबे तर्क करे जो पानी का बहाव रोकने, कम करने या इसका रुख मोड़ने के लिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध तास मुआहिदे पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर बहाल करे।
भारत में स्विट्जरलैंड के सफीर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बैनुल-अक़वामी शख्सियत का दौरा जम्मू कश्मीर को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े के अलावा किसी और हैसियत में तब्दील नहीं कर सकता, जिसका हल आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए ही मुमकिन है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि इब्राहिम मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी पॉलिसी बदस्तूर बरकरार है। ईरानी मुज़ाकरात के इस हफ्ते के आखिर में नताइज बरामद होने के हवाले से सदर ट्रंप के हालिया बयान पर सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि ये मुस्बत बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान की दोबारा मेज़बानी के लिए तैयार है और जल्द अज जल्द कोई मुआहदा तय पाने के लिए पुरउम्मीद है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मासूम कश्मीरी बच्चों को रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन निशाना बनाया है, जिसके बायस जनवरी 1989 से अब तक 933 बच्चे शहीद और 1,08,007 से जायद यतीम हो चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारहियत के शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक शहीद किए गए बच्चे गुज़श्ता 38 बरसों के दौरान शहीद होने वाले 96,497 कश्मीरियों में शामिल हैं। हजारों बच्चे गोलियों और आंसू गैस से जख्मी हो चुके हैं, जबकि कई अपनी बीनाई खो चुके हैं और सैकड़ों बच्चे सख्त कवानीन के तहत जेलों में कैद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने कश्मीरी बच्चों और मुनज़्ज़म मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, यूरोपीय यूनियन और बच्चों के हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो उन्हें भारतीय तशद्दुद से बचाने के लिए फौरी मुदाखलत करें। राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली आज मुसलसल 13वें दिन में दाखिल हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक गोलाबारी और शदीद धमाकों से गंभीर मुगला और डोरेमल इलाकों को हलाक कर रख दिया है। हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और बड़े पैमाने पर फौजियों की तैनाती के बावजूद फोर्सेस कोई भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही हैं। तवील वहशियाना मुहासरे के बायस आम लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गई है, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। जिला पुंछ में मुलाजमीन की छुट्टियों पर मुकम्मल पाबंदी और तलाशी समेत सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जो फौरी बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल की मुतकाज़ी हैं। जरीदे द गार्डियन के मुताबिक तालिबान की जानिब से आयद पाबंदी और नए कवानीन के बायस अफगान ख़वातीन की जिंदगियों में मुश्किलात बढ़ गई हैं। तालिबान के नए अदालती निज़ाम से अफगानिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी और हुकूक मज़ीद पामाल हो गए हैं। आज गजा पर इसराइली हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली तैयारों ने सुबह से पहले ही एक घर समेत 4 अपार्टमेंट्स पर हमला किया। वजारत का कहना था कि गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर से नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने तकरीबन रोजाना के हमलों में 936 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स की पोजीशन पर मार्टर गोले गिरने से अमन दस्ते में खिदमात अंजाम देने वाला एक कारकुन हलाक और 2 जख्मी हो गए। मिशन ने एक बयान में कहा कि उसने इस अफसोसनाक वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रेडियो खबरनामा जारी है और वक्त है खेलों की खबरों का। लाहौर में 3 मैचों की सीरीज के तीसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन का हदफ दिया है। इससे कबल पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 42 ओवर्स में 157 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज 1-1 से बराबर है। ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप का फाइनल कराची रीजन वाइट्स और एबटाबाद रीजन के दरमियान इतवार को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। लाहौर वाइट्स और एबटाबाद रीजन के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। एबटाबाद रीजन ने ग्रुप मरहले की स्टैंडिंग की बुनियाद पर फाइनल में रसाई हासिल की। उभरती हुई खवातीन क्रिकेटर्स को तैयार करने के लिए अंडर 19 स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दूसरा मरहला आज कराची में शुरू हुआ। 2 हफ्ते का तरबियती प्रोग्राम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें 20 खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। कैंप के दौरान खिलाड़ी सख्त फिटनेस और महारत की नशोनुमा के सेशन, नेट प्रैक्टिस और सूरत हाल पर मबनी तरबियत हासिल करेंगी, जिसका मकसद फैसला साजी और मैच से मुतल्लिक आगाही को बेहतर बनाना है। शुरका के दरमियान T20 प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे।
नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में 6 रोज़ा लेवल 2 कोचिंग कोर्स तीसरे रोज भी जारी रहा। कोर्स का मकसद बैटिंग के जदीद तकनीकों और खेल के असली तकनीकी और हिकमत अमली के पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करते हुए शुरका को जदीद कोचिंग की महारतों को बढ़ाना है। कोर्स पीसीबी मेडिकल टीम के अरकान और एनसीए कोचेस की निगरानी में हो रहा है, जो इतवार को खत्म होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुल्क भर में निचली सतह पर हॉकी को बहाल करने के लिए मुल्क गिर स्कूल हॉकी अपलिफ्ट प्लान का आगाज किया है। और एक इंटरव्यू में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि कौमी खेल की बहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे की शराकतदारों के ताउन से प्रोग्राम को हंगामी बुनियादों पर नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 1000 स्कूलों को हॉकी की मुकम्मल किट्स और बुनियादी सामान फराहम किया जाएगा ताकि तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को फ़रोग़ दिया जा सके। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई तेजी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,71,175 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजूम 697 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 551 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। बीको स्टील लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 46 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 492 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 316 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 128 में कमी, जबकि 48 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 209 रुपये 2 पैसे का इजाफा, जबकि ब्लेस्ड टेक्सटाइल लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 55 रुपये 93 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 35 पैसे और कीमत फरोख्त 278 रुपये 85 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 373 रुपये 63 पैसे और 374 रुपये 31 पैसे। यूरो 323 रुपये 4 पैसे और 323 रुपये 62 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 15 पैसे और 74 रुपये 28 पैसे। यूएई दिरहम 75 रुपये 79 पैसे और 75 रुपये 93 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 74 पैसे और कीमत फरोख्त भी इसकी 1 रुपया 74 पैसे ही रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,02,335 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,74,730 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 53,564 मीट्रिक टन बरामदी और 1,21,166 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सकाफती, इल्मी और सियाहती ताल्लुकात के हवाले से ऐवान इकबाल लाहौर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किर्गिज़स्तान के एजाज़ी कौंसल जनरल महर काशिफ यूनुस इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मुकर्ररीन ने दो तरफा ताल्लुकात के बारे में इजहार ख्याल किया। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मारूफ अफसाना निगार, मुतरजम और दानिशवर आफिस फरखी ने छठी बरसी के मौके पर जोश मलिहा आबादी लाइब्रेरी में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ शायरा ज़हरा निगार ने की। अदबी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ज़हरा निगार ने अपने सदारती खिताब में आसिफ फरखी की शख्सियत को प्यार, सीखने, दोस्ती और इंसानियत का एक शानदार इम्तजाज करार दिया। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मस्नूई ज़हानत का तेज़ी से फ़रोग़ माहौलियाती ख़तरात का बायस बन रहा है और मुल्कों पर जोर दिया कि इसके बढ़ते हुए असरात का सद्भाव करें। कनाडा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पानी, माहौलियात और सेहत की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्नूई ज़हानत खुसूसन तवानाई, पानी की खपत और कार्बन के अखराज में इजाफा कर रहा है। साइंसदानों ने समुद्री खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए शमसी तवानाई से चलने वाली टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो समुद्री पानी को मीठा बनाती, नुकसानदेह नमकियात को खत्म और कीमती मादनियात हासिल करती है। अमरीकी टेक कंपनी एनवीडिया ने मस्नूई ज़हानत की एक नई ताकतवर चिप का ऐलान किया है, जिसका मकसद इस साल के आखिर में जदीद मस्नूई ज़हानत की सलाहियतों को बराह रास्त लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर लाना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसन हॉन्ग के मुताबिक टेक्नोलॉजी को डेल, एचपी, लिनोवो, असूस, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस और एमएसआई समेत बड़े मैन्युफैक्चरर्स के आलात में लगाया जाएगा। एनवीडिया ने कहा कि मस्नूई ज़हानत से चलने वाले कंप्यूटर्स क्लाउड सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किए बगैर तहकीक, फाइल मैनेजमेंट और मवाद की तख्लीक जैसे कामों के लिए मुकामी तौर पर ज़ाती एआई एजेंटों को चलाने के काबिल होंगे। ये इकदाम एनवीडिया के रोज़मर्रा कंप्यूटिंग में मस्नूई ज़हानत को वुसअत देने का मज़हर है।
اور موسم کے حوالے سے خبریں۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں متوقع موسمی صورتحال اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ بارش، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر رابطہ سڑکوں کی بندش کا بھی خطرہ موجود ہے۔ شمشال ویلی، عطا آباد جھیل، کریم آباد، گلمید، ششکت، بالا اور پاسو کے درمیان رابطہ سڑکیں حساس قرار دی گئی ہیں۔ شگر ویلی روڈ، سکردو روڈ، دیوسائی روڈ اور کراکرم ہائی وے پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے متعلقہ اداروں کو حساس شاہراہوں اور پہاڑی علاقوں میں الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سیاح اور مسافر شمالی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل موسم اور سڑکوں کی صورتحال ضرور چیک کریں، جبکہ عوام NDMA کی آفیشیل ایپ پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ سے بروقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت سرگودا اور اس کے گرد و نواح، چنیوٹ اور جیلم اور منڈی بہاؤدین، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب جس میں لیا بکھر میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 49، جبکہ شہید بے نظیر آباد دادو میں 48، سکرانڈ اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اگر بات کریں دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو اسلام آباد میں 24، مرینگ میں 18، لاہور میں 40، کراچی میں 36، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 33، مظفر آباد میں 26، گلگت میں 31، سکردو میں 30، سری نگر میں 23، جموں میں 38، لیہ میں 22، پلوامہ میں 23، اننت ناگ میں 24 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پٹوار، وسطی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش راولپنڈی، شمس آباد میں 54 ملی میٹر، گوال منڈی میں 44، نیو کٹاریا میں 45، کچہری میں 32، اس کے علاوہ چکرالہ میں 21، چکوال میں 48، اسلام آباد سٹی میں 44، سیدپور میں 34، اس کے علاوہ ایئرپورٹ پہ 14، مری میں 37، جیلم میں 17، منگلا میں 16، کوٹ ادو میں 13، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ 12، شیخوپورہ میں 10، سیالکوٹ سٹی میں 6، گجرات اور لاہور سٹی میں 5، منڈی بہاؤدین، لاہور ایئرپورٹ، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں 3، گجرانوالہ اور بہاولپور ایئرپورٹ پہ 2، نورپور تھال میں 1، کشمیر کوٹلی میں 29، راولہ کوٹ گڑی ڈپٹہ میں 20، مظفر آباد ایئرپورٹ پہ 10، خیبر پختونخوا دیر میں 18، مارم جبہ میں 15، بالاکوٹ میں 6، میرخانی کاکول بنو میں 4، سیدو شریف میں 3، چترال کلاں میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبر نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور عوام کے اعتماد کو فروغ دینے کے لیے جدید خودکار ٹیکس مینجمنٹ سسٹم کے استعمال پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں اپنے تعلقات مضبوط بنانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے دوران کسانوں میں 20,000 گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے منصوبے کا 5واں مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شارخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔